All right. Thank you. Thank you so much, everybody. All looking good. Everybody's safe, I hope. चलिए जी, hi. My name is Rohini and Z5 अगर कुछ भी कर रहा हो तो हमें जरूर याद किया जाता है तो अच्छी बात है. तो सबसे पहले तो जहाँ कहीं भी आप हैं, I hope that you're safe. I hope that you're doing well. I hope your family is good. Just want to talk about something very, very interesting to me, which is the fact that India is an ethnically diverse nation. और हम यानी कि हिंदुस्तानियों को कंटेंट कंज्यूम करना इतना अच्छा लगता है जो रियल हो, जो रिलेटेबल हो, लेकिन अपने अपने लैंग्वेज में. एंड टुडे आई थिंक दैट इज व्हाट Z5's victory has been, right? It's home to 2 lakh plus hours of on demand content and 100 plus live TV channels. एक रिच लाइब्रेरी है जहां पर आप 140 से ज्यादा ओरिजिनल शोज देख सकते हैं और कंटेंट जो है आप 12 लैंग्वेजेस से अधिक में देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मराठी हो, ओडिया, भोजपुरी, गुजराती एंड पंजाबी. Well, the dream is very simple at Z5. We aspire to be the best when it comes to stories, okay, stories across languages and genres. And we do believe that people should have access to new voices, cultures, and perspectives. And on the way to exploring this, we also aim to consider every consumer preference, which then adds to this diverse library. And Hali mein, if there were two massive events that dropped on the OTT universe, number one, of course, the Salman Khan release Radhe, Your Most Wanted Bhai. That was home at Z5. That was one. And if you're not somebody, okay, or you cross over in that section of people जिनको भाई भी पसंद है और उनके साथ साथ उनके दोस्त या friends भी पसंद है, then that epic Friends reunion, guys, you and I know, has been one of the most viewed pieces of content across the OTT universe. So having said that, I'm very, very excited today as Z5 and representing Z5 to welcome you to another epic union. लेकिन इस यूनियन के बारे में आपको बताने से पहले, and before I ask those Avengers to assemble here today, I want to ask my friends at Z5 to kindly show us a bit of a sneak peek. Think of this as a promo of some of your favorite, most loved shows. So इसे देखिएगा जरूर और उसके बाद हम आपको इस यूनियन के बारे में बताएंगे. Could we have the promo, please? Baba? You're beautiful, Baba. But ugly inside. Just like you. Hashtag still chod. I'll call him right now. I'll resign right now. गुंडे नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स हैं. बाहर तो बड़ा शेर बने फिरते हो ना, पर सच बात तो ये है कि बेडरूम में तो मतलब जीजा जी मान दे. Baba, you're beautiful. Will you marry me? मेरे को इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज में फंसना ही नहीं है. मुझे बस एक काम आता है, डेटा एनालिसिस. अब मैं वही करूंगा बस. यार कुछ आर्टिस्ट का सेल्फ रिस्पेक्ट से काम चल जाता है. तू किस टाइप का सेलिब्रिटी है यार? You literally have a superpower to make anyone happy. अजीब बेहुदा लोग हो तुम यार. मैं सिर्फ यहाँ पर छिपकलियाँ भगाने के लिए हूँ. उसी पैसे से हम लोग एक चमचमाती बुलेट की डाउन पेमेंट देंगे. पट 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 पट. अबे पट 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 करता हुआ मेरा हाथ तेरे गाल में पड़ेगा. पड़ा. Get unlimited happy hours with TVF shows on Z5 for free. I'm loving it. Download the app now. Wow, wow, wow. I think you guys know already. लेकिन कहते हैं ना कि official बातें official लोगों को ही करनी चाहिए. So it's my absolute privilege to actually invite upon, on this conference, this virtual press conference right now, the head of Hindi originals at Z5, Nimisha Pandey. Hi, Nimisha. Could I please request you to turn on your video? Hi, hello Rohini, hello everyone. Can you hear me well? अच्छा सुनो, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ Z5 की, ये तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ एक और यूनिवर्स है जिनके हम सब बहुत बड़े फैन हैं, that is the TVF universe. I mean, I know what this is about. Okay, जितने भी लोग हैं इस कॉल पे, they know what this is about. पर निमिषा अब ऑफिशियल कर ही दो, कहते हैं ना कि अब आप बोल ही दो, इस गठबंधन का अनाउंसमेंट कर ही दो. So tell us about the union.
Okay, so let me then simply say that officially Z5 is like the biggest fan of TVF. Okay, this is a union where two big Desi brands are coming together to cater to Indian and global audiences. So we all know, right, that TVF is truly the OG of streaming content in India. Okay, and we're really proud to be partnering this. The super exciting part of the partnership, of course, TV content is available. Most of you have seen it and love it. But the super exciting part is that it has been what 5, almost 6 years since Pictures season 1 came, and as a viewer, like, we have been waiting, when will season 2 come? We have been waiting, when will Tripling season 3 will come? We have been waiting, when will Humorously Yours season 3 will come? And like so many more subsequent seasons. So we thought the best way to do that would be to get TVF to make these seasons for us. So yes, so what I'm really saying is that the exclusive subsequent seasons of all these loved shows would be coming on Z5. Is absolutely crazy. This is so great. So let me get this right, Nimisha. I wanna talk to you about two things. के पहले तो TVF के cult favorite shows रहे हैं, जैसे कि Permanent Roommates हो, Tech Conversations with Dad हो. तो ये सारे के सारे shows जो हैं, they will be available on Z5's AVOD platform. Is that correct? यानी कि हम सब इन अपने favorite shows को यहाँ पर आकर देख सकते हैं. That's one, correct? देख सकते हैं and free of cost देख सकते हैं. So that is absolutely correct. So that is available on AVOD. Yes. All right. And the second part of this, which I think is a very, very exciting announcement, is that there are iconic shows rahe hain TVF के, जैसे कि Pictures हो, Tripling हो, Humorously Yours हो, amongst the others. तो ये सारे के सारे shows जो हैं, आप कह रहे हैं कि अपना अगला season Z5 पर announce कर रहे हैं. Am I getting that right? Yes, absolutely. Oh my God. We are very excited to welcome these iconic actors home. We are very, very excited that their further story will unfold only on Z5. Well, this is great. Nimisha, thank you so much. But stick around because I want you to officially welcome, ये सारे जो members हैं TVF परिवार के, कुछ overlapping members हैं, जैसे कि मानवी है या अभिषेक है, ये Z5 के साथ वैसे भी associated रहे हैं. But could I please, ask all of my audience who are here with us to say a prayer and welcome all of them on to this wonderful virtual, call today. Manvi Gagru, of course, representing Tripling. Hi, Manvi. Abhishek Banerjee representing Pictures, Naveen Kasturia again representing Pictures, Abhay Mahajan representing Pictures, and Vipul Goyal representing Humorously Yours. Hi guys. Hello. Hi Rohini. Hi Rohini. Hi Nimisha. Hello. Oh my God. Thank you. Like, welcome to Z5, guys. This is the fan in me is super thrilled and excited to have you all here. And I think it's our privilege to welcome you in the family. So thank you very, very much. I hope you have a greater time creating the subsequent seasons and, working with us. Thank you. Yes. Thank you so much, Nimisha. Thank you for that official welcome. That's really kind of you. And thank you so much for joining us today. We'll see you back in a bit. Thanks, Nimisha. All right. Gentlemen, hi. Hi Rohini. कैसे हो मतलब इस कॉल पे दीदी सिर्फ मैं हूँ क्योंकि दूसरी दीदी तो आई नहीं है. तो वो आ जाएंगी थोड़ी ही देर में. कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी? I think क्योंकि सब work from home कर रहे हैं. She's on her way from the bedroom to the hall. मुझे ऐसे लग रहा है. तो ज्यादा दूर नहीं है. Knowing Manvi, it might take some time. नहीं, पर अभी announcement क्या हुआ? Season 2 आने वाला है. हाँ. कौन सा वाला? फाइनली अबे हमारे पास काम होने वाला है अब. मेरा सीजन 3 आपका सीजन 2. That's fantastic. In fact, इसी के साथ शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो thank you so much guys for joining us. I think this is going to be amazing. Pictures season 2, Tripling season 3, Humorously Yours season 3, Engineering Girls season 2, and Aam Aadmi Family का season 4. So wow, let's start with Pictures. So Naveen, Abhishek और अभय, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी. अभय seems to be a little, कि यार अभी announcement हो गया है. लेकिन मैं नवीन से शुरुआत करती हूँ. फिर नवीन, क्या लगता है कि ऑडियंस इस बार इस नए सीजन से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? क्या ये मूछें आपकी इस सीजन का हिस्सा हैं? नहीं.
मुझे तो अभी पता लगा है कि सीजन 2 का अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसलिए नहीं, मूंछों का कोई लेना देना नहीं है इससे। एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है रोहिणी, आई हैव नो आइडिया कि बट नवीन, ये आपकी मूंछें क्या रॉन जेरेमी की बायोपिक कर रहे हो क्या Z5 पे? नहीं ऐसा इंडियन बोराट दिख रहा है, इंडियन बोराट। हाँ, बोराट ही लग रहे हो। हाँ यार, इंडियन बोराट लग रहे हो यार। हाँ, तो बोलो रोहिणी, जी के साथ कुछ बोराट जैसा भी कुछ करने का। हाँ, निमिषा इज ऑन द कॉल। दिस इज अ ग्रेट प्लेस। ये देखो, मौके पे चौका ऐसे एक्टर मारते हैं, फैंटास्टिक। निमिषा, आई होप यू आर लिसनिंग। वी नीड टू हैव अ इंडियन बोराट विद नवीन कस्तूरिया प्लेइंग इंडियन बोराट. This will be amazing. But tell us a little bit more about the journey of this iconic show. By the way, did you guys realize इसी महीने, जून के महीने 6 साल पहले पिक्चर्स अनलीश हुआ था इंडियन ऑडियंसेस पे. So I want to take this around the room. I'm going to start with you, Naveen, once again. Naveen, जब ये शो बन रहा था, before the show launched, पहला एपिसोड आने से पहले, what was the feeling like? कि क्या कर रहे हैं हम? OTT उतना बड़ा भी नहीं था. What were you guys thinking of at that time? मुझे बताओ. I think मेरे ख्याल से तो वो TVF का फर्स्ट अटेम्प्ट था. उससे पहले परमानेंट रूममेट्स आया हुआ था, जिसमें एपिसोड्स थे लेकिन उतने बड़े नहीं थे. I think लास्ट एपिसोड परमानेंट रूममेट्स का बड़ा था, बट अदरवाइज उनका लेंथ छोटा था. तो इस बार they were planning to release 40 minutes का एपिसोड्स. तो मैं तो नर्वस था. आई थिंक TVF भी नर्वस होगा ही, आई एम गेसिंग, बिकॉज़ ये पहली बार हो रहा था कि आप पूरी कहानी YouTube पे ही सुना रहे हो और लॉन्ग फॉर्मेट में 40-40 मिनट के एपिसोड. हालांकि 3 जून को पहले TVF प्ले पे आया था एपिसोड, और फिर 10 जून को YouTube पे आया था. मुझे डेट्स याद हैं क्योंकि मैं सुबोध हूँ, दिल चाहता है टाइप. तुम सुबोध हो. हाँ, मुझे डेट्स याद रह जाती है. तो हाँ, आई थिंक आई डोंट थिंक किसी को भी इसका अंदाजा था कि इस किस्म का रिसेप्शन होगा. मुझे याद है बिसू कहता था कि अगर हम 1-2 लोगों को भी इंस्पायर कर पाए जो इवेंचुअली अपना स्टार्टअप शुरू करें, तो वो बहुत बड़ी बात होगी. बट मेरे ख्याल से तो मैं कितने लोगों से मिला हूँ, उनका स्टार्टअप का इंस्पिरेशन ही पिक्चर्स रहा है. तो आई फील लाइक thousands of people were inspired by the show, and so I don't think anyone anticipated this kind of response or success for the show. Fantastic, and I love it. What a journey it's been for you, right? From pictures to aspirants. Matlab, it's just such a beautiful time to talk to you because Rohini, we met on Suleimani Kida. You know that, right? Who we na? Yeah. आपने लात भी मारी थी मुझे. नहीं. मैंने क्या किया था? रोहिणी को याद नहीं है, तब आप स्ट्रगलर थे. नहीं, रोहिणी ने एक्टिंग करी है सुलेमानी कीड़ा में यार. हाँ यार, हम सब उस टाइम, मतलब अभी भी स्ट्रगलर ही है, क्या कहें. मैं वही बोलने वाली थी कि हम सब उस टाइम पर हमारे दोस्त अमित मासूरकर की एक फिल्म थी, तो उसमें हम जुड़े हुए थे और तब से एक दूसरे को जानते हैं. लेकिन इट्स बीन अ गोल्डन जर्नी फॉर यू, नवीन. एंड आई थिंक टुडे व्हाइल वी वर ऑफ कोर्स डिजाइनिंग कि यार ऐसे लोगों को आज एक साथ लाना चाहिए जिनका एक इम्पैक्ट रहा हो, एक जर्नी रही हो TVF के साथ. एंड आई थिंक दिस इज द पॉइंट. आई विल टेक दिस टू अभिषेक एज वेल. अभिषेक, hi. Recently, of course, हम मिले हैं, इंटरव्यूज वगैरह किए हैं, बट आई नो दैट जो आज आपको जो बास कर रहे हैं आप इन द ग्लोरी ऑफ बीइंग एन एक्टर एंड अ ग्रेट एक्टर, कहीं ना कहीं ये TVF की जर्नी आपके साथ भी जुड़ी रही है. क्या श्रेय देना चाहेंगे या क्या उस दौर के बारे में कहना चाहेंगे दैट यू परहैप्स वर नॉट द अभिषेक बैनर्जी ऑफ टुडे? उस रोल में अगर आप TVF को देखें तो क्या हिस्सा रहा है TVF का आपकी जर्नी में? आई थिंक एज एन एक्टर, मतलब अगर मुझे लगता है अगर पिक्चर्स नहीं बना होता तो शायद मेरी एक्टिंग का जर्नी शुरू ही नहीं हुआ होता. बिकॉज आई हैड कंप्लीटली लॉस्ट होप इन माय एक्टिंग कैपेबिलिटीज, बिकॉज आई वाज गेटिंग रिजेक्टेड लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, हर जगह पे. और क्या बोलते हैं, दोस्त भी थे जिनको जानता था, लेकिन तब भी कभी काम मिलता नहीं था एज एन एक्टर. तो मैंने इनफैक्ट पिक्चर्स, निधि विश ने मुझे फोन किया था, जो उस टाइम TVF की सारी कास्टिंग भी करती थी, परमानेंट रूममेट्स का भी उन्होंने किया था. तो उन्होंने मुझे फोन किया था, बोला था कि यार ये एक सीन का रोल है, इसका ऑडिशन दे दे. तो मुझे लगा यार एक सीन के लिए ऑडिशन कौन मांगता है. पहली बात तो मुझे उसी पे मतलब बुरा लग गया कि यार एक तो एक सीन है, उस पे ऊपर से ऑडिशन मांग रही है, ऊपर से ये लोग दोस्त हैं. I had made up my mind that I am not going for any audition for one scene. Yeah, that was too, बहुत ही छोटा. Oops. Sorry, Abhishek, we are losing you. Abhishek, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक, टीवी चैनल.
अभिषेक अभिषेक अभी Z5 वालों को बोलो एक ब्रॉडवे इंटरनेट भी खोल दे अभिषेक के लिए. Okay, while Abhishek unfreezes. हाँ, Abhishek. Wait. am I आ गया वापस? हाँ. तो आ गए. तो वैसे ही कुछ हुआ था कि निधि ने मुझे फिर she chased me और वो काफी टाइम तक मेरे पीछे पड़ी रहे, and I thought that it would be very rude to now say no to her because she's also a good friend, and I went and gave the audition. And मुझे याद है actor मतलब as an actor that was the first time I was trying a different technique, like you know हर actor का अपना एक technique होता है, आप अलग तरीके से scene को approach करते हो. That was the first time मैं अपने acting में कुछ एक नया ढूंढने की कोशिश कर रहा था. And that is how that scene वो audition में मैंने किया, और फिर जाके of course like you know वो एक आधा दिन का scene था, वो मैं जाके यहाँ पे नवीन वहाँ बैठे थे हम लोग आराम से मस्ती में. I think we didn't really spend a lot of time. I finished that scene and I went back home forgetting about it. सब कुछ भूल गया कि क्या होना है क्या नहीं होना है. I never even thought, एक second के लिए भी नहीं सोचा कि release होगा तो क्या होगा. No excitement, zero excitement. फिर pictures release होता है. Of course, pictures release होता है तो मतलब you know everybody, all Naveen and these guys, they become like you know superstars and everybody knows them and this and that. Yeah. और वहाँ बीच में मुझे भी लोग बोल रहे थे कि हाँ तेरा एक scene है. I didn't realize you know how big it is till I reached some place in South India with my wife, a very remote place. मतलब दुनिया से थोड़ा अलग रहने के लिए हम लोग थोड़ा quaint place में जाके रह रहे थे, और वहाँ पे एक बस रुकी, और वहां बस में शायद वो सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे या स्कूल के थे, सब लोग ऐसे उतरे, बहुत सारे बच्चे उतरे, और मैं नॉर्मल अपना क्या बोलते हैं बीवी के साथ टहल रहा हूँ, एंड सडनली आई हर्ड वॉइसेस, तू बियर है. तो मैं पीछे देखा था इनको क्या हो गया है, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट एंटायर बस दे वर लाइक यू नो big huge fans of pictures, and they were of course huge fan of that one dialogue. And as Naveen just said, I met lots of IT professionals who came and told me कि आपके उस dialogue की वजह से हमने नौकरी छोड़ दी. So I didn't know how to you know receive that, whether to you know take it as a good thing or bad thing, because those guys are leaving their jobs. But I took it as a compliment because you know बार में हर जगह पे लोग इनफैक्ट बियर के ग्लासेस लेके बोलते थे आपके साथ एक बियर पीना बनता है, and this and that. So suddenly I became like the beer god. तो beer god, but तू beer है. But yeah, I mean टी-शर्ट्स बन गए, मुझे याद है इतने लोगों ने टी-शर्ट्स बनाए थे तू beer है के साथ. Correct. नहीं अगर पिक्चर्स नहीं होता तो मैं आज एक्टर नहीं होता, ये for sure है. Like you know that's the importance it holds. That's the importance pictures holds and TVF holds in my life. Fantastic. बहुत शुक्रिया. I'm going to take this to Abhay at this point. Abhay, यार तुम मुझे बताओ, what was it like, that sort of reception? ये शो आपकी जिंदगी में क्या लेकर आया था? Actually the same जो अभिषेक ने बोला वैसे ही है, क्योंकि जैसे विपुल जी जानते हैं कि मैं मराठी इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहा था. अरे बहुत साल से वहाँ पे काम कर रहा था, पर और मैं ऐसी फिल्मों में काम करता था जिसको नेशनल अवार्ड मिल रहे थे, पर वो कोई देख ही नहीं रहा था. वो रिलीज ही नहीं होती थी, सिर्फ जूरी देख रही थी. सिर्फ जूरी देख रही थी और कोई नहीं देख रहा था. और सडनली अचानक से पिक्चर्स का हो गया, और किसी को कुछ पता भी नहीं था उस टाइम के वेब का सीन क्या है उस तरह से, और वो हो गया वो अचानक से हो गया मतलब. और जो कुछ उस तरह से पहचान मिली तो वो पिक्चर्स के वजह से ही मिली उस टाइम पे. और तो मतलब बहुत ही वो माइलस्टोन बोलते हैं ना, तो वो बिल्कुल तरह से हो गया. तो कि इस नए सीजन में जैसे कि आपने कहा कि यू हैव नो आइडिया, नाउ यू नो देयर इज गोना बी अनदर सीजन, लेकिन इस बार कौन सी चीज के स्टार्टअप के पीछे लगने चाहिए आप लोग? डू यू हैव एन आइडिया? आपके मन में कोई तो कहानी होगी कि चलो यार इस बार हम ये बेचते हैं, क्या हो सकता है? नहीं, कहानियां तो 5 साल से हमारे दिमाग में है, पर वो हम अलग सोचते हैं, राइटर्स अलग सोचते हैं, तो हमारा उसमें चाहे तो वो तो डिसाइड तो अलग ही लोग करेंगे, क्योंकि बाकी कोई भी काम आया तो मतलब किसी ने एड में भी काम किया तो उसके भी नीचे यही लिखते हैं कि पिक्चर्स 2 कब आ रहा है, तो अभी आ रहा है, तो बाकी लोग देखेंगे. अभी वो कर रहे उतना ही काफी है हमारे लिए, जो मिलेगा वो हम कर लेंगे. Fantastic. Thank you so much, Abhay. Vipul, humorously yours.
में एक कमाल का सीन है, एक डायलॉग है जहाँ पर बोलते तू किस टाइप का सेलिब्रिटी है यार, लाइक यू नो। वो तो अभी भी बोलता हूँ इसको। अभी आप आगे निकल गए हो, लेकिन आपको मुझे सपोर्टिंग करना पड़ेगा। ह्यूमरसली योर्स पहला शो है इंडिया का पहला शो है जिसमें कॉमेडियन लीड है और बड़े बड़े एक्टर्स रसिका और अभिषेक बैनर्जी सपोर्टिंग रोल में है। ऑटोबायोग्राफिकल मुझे याद है ये, इसमें पता नहीं चल रहा था कभी कभी कि ये खुद की कहानी है या नहीं, लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू दैट विपुल, आई थिंक ये जो एक पर्सनल को प्रोफेशनल आपने एक रूप जो दिया था, आई थिंक ये बहुत ही लोगों के साथ कनेक्ट कर गया था। टॉक टू मी अबाउट द आइडिया यू नो ऑफ डूइंग दिस शो इटसेल्फ एंड द पॉपुलैरिटी कि अब लोग अगला सीजन मांग रहे हैं, इसके बारे में बात कीजिए। तो पहला तो ये कि पिक्चर्स बनाया, तो स्टार्टअप वर्ल्ड पे पिक्चर्स बनाया और पिक्चर्स ब्लो अप हो गया, वन ऑफ द बेस्ट शोज अक्रॉस ओटीटी यूनिवर्स, मुझे अभी भी लगता है ना, इंडिया में। तो दूसरा, तो फिर अब टीवीएफ वाले बैठे, अब और क्या चल रहा है इकोसिस्टम में, जनता को क्या चाहिए, तो स्टार्टअप और स्टैंड अप। तो स्टैंड अप में कौन है? टीवीएफ में एक ही आर्टिस्ट है जो स्टैंड अप करता है, विपुल। तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि यार एआईबी तो सब अलग है, तो यहाँ पे मेरे को काम मिल सकता है। तो उनको ये था कि मतलब मैं बोला ये बड़ा सही हो गया यार। फिर तो मुझे बुलाया गया कि यार बेसिकली ऐसा था कि कोई ब्रांड आए थे और उनको वैसा शो चाहिए था कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो ट्रैवल करता हो, तो ब्रांड इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब प्रोटैगनिस्ट ट्रैवल तभी करेगा जब उसका शो ऐसा हो, कुछ वो करता है प्रोफेशन। तो आया कि कॉमेडियन स्टैंड अप वहां से ही चलता है, तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो पहले मुझे बुलाया गया जस्ट कि भाई तुम्हारी क्या स्टोरीज है, हमें बताओ स्टैंड अप वर्ल्ड में क्या होता है। तो मैंने स्टोरीज बताई और तब मेरे को एज एन एक्टर कास्ट नहीं किया था इन्होंने बोला कि अभी एज ए राइटर ही है। तो वो स्टोरीज बताई और फिर उनको स्टोरीज में मजा आने लगा। और फिर सारी स्टोरीज मेरे लाइफ की थी कि भाई हिंदी कॉमेडियन है ना, आईआईटी पास आउट है, वाइफ के साथ में ये होता है, उसका रियल फ्रेंड भूषी है। तो जो अभिषेक बैनर्जी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो रियल फ्रेंड है मेरा भूषी, जो अभी भी आईआईटी बॉम्बे का ही है। लेकिन हमने काफी स्टोरीज टोन डाउन करी, वरना लोगों को लगेगा कि राइटर्स भी फूक के कुछ भी लिख रहे हैं, तो बहुत ही वाइल्ड स्टोरीज है उसमें। तो वहां से असली भूषी ज्यादा वाइल्ड है, ये बात तो है। हाँ। तो वहां से फिर ये हुआ और फिर स्टोरीज वो हुई। तो धीरे धीरे पूरा कैरेक्टर जो बन रहा था वो मैंने, गोलानी हमारे डायरेक्टर थे जो पिक्चर्स के भी डायरेक्टर थे, तो अपॉर्चुनिटी मतलब मेरे लिए तो ये था कि आई वॉज नॉट इन एनी पोजिशन, मेरे को जो बोलता करना है यार, मतलब कोई एक्टिंग काम मिल नहीं रहा था, है ना। ये अभिषेक बैनर्जी मेरे को कब बुलाते हैं पता है, इनकी कास्टिंग एजेंसी है, ये मेरे को धनतेरस के दिन बुलाते हैं वॉशिंग पाउडर के ऐड के लिए बस, है ना। उसमें भी वॉशिंग पाउडर, अगर बड़ी चीज वॉशिंग मशीन बेचनी होती है तो सुमित व्यास को बुलाते हैं, ठीक है। उसमें भी नहीं तुझे सफोला के लिए बुलाया, सफोला। मुझे सारे धनतेरस में वेट करता हूँ कि कास्टिंग पे से कॉल आने वाला है। तो वहां से फिर ऐसे सारे, और इसमें बहुत हमारा फायदा ये हुआ कि जितने भी स्टैंड अप के हमारे जितने भी कॉमेडियंस हैं अपने एआईबी के और जो भी इंडिपेंडेंट है, जाकिर है, जितने भी बड़े लोग हैं, तो उन सबका बड़ा हेल्प रहा, बिकॉज इट इज अ शो नॉट अबाउट विपुल, इट इज अबाउट द कॉमेडी फ्रेटर्निटी। तो व्हेन मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ तो दैट रिप्रेजेंट्स 95% ऑफ द स्टोरीज ऑफ एवरी कॉमेडियन। तो इसलिए हमारे उस यूनिवर्स में काफी गेस्ट अपीयरेंसेस है सारे बड़े कॉमिक्स से, तो उनका भी हेल्प रहा, इनपुट भी रहा, तो वो एक अच्छा शो बन के आया। और देखो मेरे पास कोई एक्टिंग काम था नहीं, मेरे को जो भी बोलते फाइनली रोल नहीं भी देते, छोटा मोटा ही देते, तो मैं करता, क्योंकि यार देखो मैं भी सच बोलूं तो मैं भी बॉम्बे में शाहरुख खान बनना आया था यार, ये हालतों ने मुझे सुनील पाल बनाया था यार। तो मैं भी यही करना चाहता था, तो मेरे को जो भी बोलते मैं करता। मेरे लिए तो ये तो कोट है, मैं बॉम्बे शाहरुख खान बनने आया था और हालातों ने मुझे सुनील पाल बना दिया, मतलब मैं पहनूं, भेज दो। क्योंकि अरुणाब की जो पहली सारी शॉर्ट फिल्में है ना, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, उन सबका लीड मैं था। फिर मैंने देखा इसमें कुछ पैसा नहीं है, स्ट्रगल चलता ही रहेगा, मुझे सुदामा वाली जिंदगी नहीं चाहिए, मैं स्टैंड अप में निकल गया और वहां पे मेरा सही चलने लग गया। फिर अरुणाब बड़े हो गए, टीवीएफ बड़ा हो गया, फिर मैं आया, अरे मेरा एहसान भूल गए, मैंने कितना सपोर्ट किया आपको, मेरा शो किधर है? तो अरुणाब बोला हाँ यार ठीक है तेरा भी करवाते। तो ऐसे ह्यूमरसली स्टार्ट हुआ। और फिर एज एन एक्टर मैं तो बहुत खुश था कि यार रसिका और अभिषेक बैनर्जी जितने बड़े एक्टर से मुझे काफी सीखने को मिला वहां पे, इनको भी कॉमिक टाइमिंग सीखने को मिली। मैं वही सोच रहा था, तूने तारीफ इतने इजीली कैसे कर दी? मैं वही सोच रहा था कि ये क्या हो गया विपुल को, ये क्या हो गया? अरे नहीं यार, प्रेस रिलीज है, समझा करो यार। भूल जाता हूँ, I keep forgetting यार। तो हाँ, तो सिखाया फिर उसके बाद। तो वहां से फिर हम सेट पे गए और सेट पे यार टीवीएफ यूनिवर्स था, तो
गोलू था यार, पिक्चर्स के इतने बड़े डायरेक्टर यार, इससे ज्यादा मतलब मैं तो यही मानता था कि मेरा ओटीटी पे यशराज वाला लॉन्च हुआ है भाई। मतलब मैं यही मान के चल रहा था मैं उदय चोपड़ा हूँ इस यूनिवर्स का, और क्या लॉन्च मिला है। मतलब बड़े बड़े एक्टर्स, शाहरुख खान सपोर्ट कर रहे हैं, काजोल सपोर्ट कर रही है, और हमारे आदित्य चोपड़ा गुलानी जी बना रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए यार आपको। तो मैं तो फुल प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म हूँ, मैं ओटीटी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूँ मैं। बट बहुत अच्छा। अब लोग आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक अभय ने कहा या अभिषेक ने कहा कि चाहे आप जो भी कर ले लाइफ में, और मतलब और भी चीजें कर ले, लेकिन YouTube पे कमेंट सिर्फ यही आता है कि सर अगला सीजन कब आ रहा है। एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग। ये ऑडियंस का ये जो लुकिंग फॉरवर्ड टू है, आई थिंक उसी की वजह से तो आज Z5 पर ये एसोसिएशन अनाउंस कर रहे हैं कि अगला सीजन जो है आपके इन शोज का is going to be on Z5. So having said that, I'll come back to you, Vipul. I want to say a big hello and a warm welcome. Representing Tripling and talking to us about season 3, Manvi Gagru. Hello. Hey. मानवी जी, अपना चेहरा दिखा दीजिएगा हमें अभी, hopefully. Oh. Can you guys hear me? Yes, we can. आवाज आ रही है? I don't hear you at all. अरे शक्ल भी तो दिखा दो। Wait, let me join you again. Camera, please. विपुल, आपके लिए कमेंट आया, you can reach greater heights. फिल्मी टाउन से परेश मेहता कह रहे विपुल डोंट वरी, you have potential to reach great heights. नहीं करता। अरे मैं जोक मार रहा था यार, मैं बड़ा आदमी हूँ। अच्छा दीदी, पहले तो ये बताना जरूरी है कि आप मतलब वर्क फ्रॉम होम के माहौल में लेट कैसे हो सकती हैं एक इवेंट के लिए? अरे मैंने इन लोगों को बोला था मैं अवेलेबल नहीं हूँ 2 बजे से पहले, पर या लेकिन तुम आ गई। Planning has never been a forte of this group of people, so yeah. But yeah, I'm here now. 2 बजे से पहले कौन से OTT पे प्रेस रिलीज कर रहे थे आप? बिजी तो यार, अभी भी बिजी है तो पर्सनल काम निपटा रही थी, फिर काम चालू 2 बजे के बाद। Essential services. तो दीदी शुरू करते हैं। We just announced the season 3 of Tripling that's going to start and it's going to be on Z5. So हम ये पूछ रहे थे, there's a season 3 of Tripling. देखो, I'm kidding. Sorry. Yeah. So Abhay had the same reaction. He said अभी तो पता चला मुझे. So we believe you. मुझे भी तभी पता लगा with respect to this call कि अच्छा guys ये बोलना है. हाँ, sorry. मुझे तो पिछली रात को सब पता चल गया था, पिछली रात को। नहीं, मुझे तो वो नेपोटिज्म वाला है ना। हाँ यार। All right, Manu, the first, we've been asking questions about, the facts के जब पहला season shoot हुआ था, OTT पर shows, they were not expected to be this big, okay? Correct. Something happened. You were part of Pictures as well. You were part of Tripling, 2 iconic shows. Tell us about the excitement of creating an audience, okay, with a new platform, with a new sort of avenue. OTT उस time पर क्या था और क्या हुआ? What did you see? What happened? Okay, so these guys already had an audience. TVF already had an audience. Of course, it wasn't as large as it is today, or even after Pictures or Tripling release, what it became. But they had some kind of a market share, in like audience share in that terms. So when they did Pictures was something like the again, like because I used to keep going to their office, like most of them were friends. So I used to feel कि कुछ तो बन रहा है यहाँ पे, कुछ something exciting is happening, because just I used to hear them talking, and I generally, and they were such, like the team was so good, like, Golu, Bisso, Prem, Subbu, Bandhu, just all these guys together. And I was like, Arunab, of course. Then I was like, कि कुछ तो interesting बन रहा है. And then I remember when they started casting for it, and then of course, like I became a part of Pictures. And Pictures, say what happened was suddenly, so of course the base or audience base they already had was of course very happy, but even the new people, they were like, "Arey, ye kya cheez hai?" This is something interesting. And then word of mouth, it spread even further, and this and that. And with
And so suddenly what happened was the industry started taking notice. This is my analysis. हाँ, ये this is my analysis in retrospect. बिल्कुल इंडस्ट्री ने नोटिस करना शुरू किया कि कुछ हो रहा है. तो इंडस्ट्री ने नोटिस करना शुरू किया कि यार ये तो कुछ अच्छा हो रहा है. So suddenly उनके like कान खड़े हो गए type of a thing. And then Tripling में what in my opinion what TVF did was they made the same model, the model of a web series. They made it marketable. They made it a money making model. Tripling से suddenly scale बढ़ गया. मतलब पहली बार वेब सीरीज में एक ड्रोन शॉट यूज हुआ, that sort of a thing. I remember that. और इतना खूबसूरत, मतलब अब तब तक I mean for the lack of a better word, they were small budget, जितने भी posts थे वो लोगों के घरों में बन रहे थे, छोटे छोटे स्टूडियोज में शूट हो रहे थे, लेकिन एक कहते हैं ना एक खुलापन. बिकॉज आई सॉ, मुझे याद है मैंने एक पैलेस देखा, एक शादी का सेट देखा. सडनली वी जस्ट सॉ थिंग्स स्केल अप, है ना? Yeah, suddenly the scale just went like it almost doubled, tripled, and I remember actually Tripling का season 1 का जो screening था, I think तन्मय भट्ट ने आके बोला था ये कि like he just came in, he said guys thank you because now you have given us a reference point. Now when we pitch to clients we will say कि देखो अगर Tripling जैसा show चाहिए तो budget भी वैसा ही देना पड़ेगा, so yeah, so then they were like, that's how then like it just opened up the market for people to realize that you can actually make money out of this also. Like it's not just a web series कि आपने घर पे video, like you said ना कि घर पे shoot करके डाल दिया YouTube पे. It's not just that. It's bigger than that or whatever. So I think that kind of opened the gates. अच्छा, तो अब बता दो season 3 में क्या होने वाला है जल्दी से. Season 3 में देखो चितवन और चंदन नहीं है. It's just Chanchal. And it's not story we are following. And and Chanchal finally has some career professional ambitions which she follows, and तुझे 2 कैरेक्टर्स और चाहिए होंगे ना, तो एक में देख लेना. ट्रिपलिंग है. अरे of course 100% इनमें से सब आ सकते हैं basically. कोई बिला विपुल तो इसमें सपोर्टिंग नहीं, डिक्की में रखने के लिए कोई लास्ट चाहिए तो मैं हूँ. नहीं तू सपोर्टिंग डाइंग मैन. विपुल, सवाल आ गया तुम्हारे लिए कि भाई अब ह्यूमरसली और के अगले सीजन में क्या होगा, तो ये इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, ऑडियंस पूछ रही है. तो सीजन 3 में हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं. मैं एज अ राइटर भी ऑन बोर्ड हूँ क्योंकि मेरी लाइफ की स्टोरीज है जो 80% ट्रू है, बाकी 20% हम ड्रामेटाइज करते हैं ताकि मेरा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा इंसान बन के आए. तो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स में हटा देता हूँ. मेरी वाइफ को बहुत बड़ी शिकायत है कि यार तू कितना अच्छा आदमी बना, राम भगवान बन के बैठा हुआ, तेरी असलियत तो दिख नहीं रही. हाँ, अरे यार मतलब ब्लैक और व्हाइट थोड़ी होता है यार. तो काल्पनिक. हाँ, तो बोलिए ना. तो सीजन 3 पे अभी हमारी कुछ प्रोसेस राइटिंग है, तो वी ट्राइंग टू थोड़ा स्केल अप. अभी हम काफी एपिसोड के आइडियाज क्रैक कर रहे हैं और कुछ इस तरह हम प्लान कर रहे हैं कि मे बी जैसे सीजन 1 में इट वाज इंडिया टूर, सो मे बी इस बार वी आर जस्ट वर्किंग ऑन कि कैन वी हैव एन इंटरनेशनल टूर, मतलब वर्ल्ड टूर टाइप्स, व्हिच इज द एक वर्ल्ड टूर वाला चल रहा है. वेरी गुड आइडिया एक्चुअली बोल रहे हो. नो इट्स अ वेरी गुड आइडिया. वी शुड स्केल अप. हां, मानवीय मैं राइटर भी हूं यार. अभी Z5 खुद बोलेगा नहीं इंडिया टूर ही रखते हैं यार. वर्ल्ड टूर बता. तो हम तो एक शॉट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे लेने वाले हैं, एक शॉट ब्रुकलिन ब्रिज पे होने वाला है. तो मैंने तो सब कुछ सोच लिया है. मेरा बहुत मन था कि ये ट्रिपलिंग सीजन 3 should be in Australia, like because Australian road trips are like across Australia, the road trips are very popular and they're very good, like you go through various kinds of topographies and ये वो. तो मेरा बहुत मन था कि हम like with Tripling 3 we go international, but I don't think वो तो नहीं हो रहा. मानवी, आपको फॉरेन घूमने के लिए आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज वाली. मैंने तो ट्रिपलिंग में आप गाड़ी से जाओगे, प्लेन से नहीं जाओगे, तो आप देख लो इंडिया में रहोगे आप. और एक सवाल आया है अभिषेक आपके लिए, प्योर है जो सिनेस्तान.com से है. वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि यू वर स्ट्रगलिंग टू गेट अ रोल वंस और तब OTT ऑफ कोर्स वाज देयर, लेकिन आज आप वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स हैं इन द OTT यूनिवर्स. मुबारक हो. बट सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो डू यू फील कि यू आर इन अ मोर सिक्योर प्लेस नाउ? बीला तेरे लिए क्या यार चक्कर क्या, वो रुक के आया सवाल.
नहीं सुनाई दिया मुझे। एंड वाला पोर्शन क्या था? वो जानना चाहते हैं कि अब आप अपने आप को एक सिक्योर प्लेस में फील करते हो कि नहीं? डू यू फील अभी आप स्टार मानते हो अपने आप को कि नहीं? सिक्योर नहीं, सिक्योर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक सिक्योर वर्ड एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल चीज है। चाहे मतलब सिक्योरिटी कब आएगी, कैसे आएगी, वो किसी को नहीं पता। बट हाँ, ये जरूर है कि खुश है। पहले ये लगता रहता था कि ये विपुल के साथ ही पूरे दिन, पूरी जिंदगी भर जो है शो करना पड़ेगा। ये एक ही शो है जिसके साथ मतलब भरोसे जो है एक्टिंग की दुकान चलेगी, लेकिन एटलीस्ट उसका थोड़ा सा प्रमोशन हो गया, बाकी चीजें भी मिलने लग गई। तो उसमें डेफिनेटली एक सेटिस्फैक्शन है। पर सिक्योरिटी तो आई थिंक एक्टर्स की जिंदगी में बड़ी मुश्किल चीज है। किसी और को है भाई सिक्योरिटी यहाँ पे? आई डोंट नो यार। देखो यहाँ पे बाकी सब आगे होके बैठे हैं, सिर्फ विपुल आप ही सिक्योर लेड बैक होके बैठे हो यहाँ पे। वो मेरा बॉडी लैंग्वेज से ये तो फ्रीज हो गए सर फिर से फ्रीज हो गए। सो व्हाइल ही कम्स बैक, जब तक 4-5 बॉडीगार्ड ना हो, आई डोंट थिंक वी कैन टॉक अबाउट सिक्योरिटी। एंड इंशाल्लाह ये आप सबके साथ हो, so that when I call you the next time I have to call at least 3 managers. ये भी होगा, ये भी होगा। Naveen, I want to take this to you, buddy. Are you ready? All right, Naveen, मैं आपको कुछ कमाल के डायलॉग जो है सुनाने वाली हूँ आप ही के शो से। ओके, बाकी लोग हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है? ये सिर्फ नवीन को पहचानना है कि पिक्चर्स में कौन से किरदारों ने ये डायलॉग्स बोले थे, ठीक है? I don't think Naveen has seen the show apart from his scenes. तूने देखा है Naveen? This is what Gagru does all the time. But the thing is, तू हर scene में है ना, तो तूने पूरा देख ही लिया होगा ना। So yeah. और नवीन, सबसे पहले सबसे जो फेमस डायलॉग है आपको बताना है किसने कहा था ओरिजिनली? तू बियर है बी। भाटी यही बैठे हैं हमारे। मैं तो कभी, मुझे इनफैक्ट कई बार लोग मिलते हैं और कहते हैं कि एक बार बोलो तू बियर है, जो आपने बोला था शो में। शो में कभी बोला ही नहीं है तू बियर है। हाँ, एग्जैक्टली। नेवर सेड दिस लाइन। ये भाटी नहीं बोली है और ये भाटी की लाइन है। हाँ, भाटी जरा बोल के बता दो यार। तू क्या है नवीन? मैं क्या हूँ मतलब? मैं तू क्या है? रीजनल मैनेजर हूँ। मोकॉट में भूल गया। तू क्या है? अरे तू क्या है भाई? तू सही में भूल गया क्या लाइन? अबे तेरी लाइन है। नहीं, मैं तो पहली बार बोलता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं रीजनल मैनेजर हूँ मोकॉट.com का। तो गाइस इसीलिए रियल लाइफ में भी नवीन बियर है, तू बियर है। मैं फिर कहता हूँ, मैं आगे कहता हूँ तू कॉफी है, तू कॉफी है इज माय लाइन। बट हाँ, वो इस सीन में नहीं था, वो अगले सीन में था, तू वापस भूल गया। नहीं, अरे मैं एक काम करो, Z5 पे पिक्चर्स करके एक सीजन में पड़ा, वो देख लो एक बार आप। और हमें बता दो कि क्या लगी। अरे अच्छा शो है, IMDb पे रेटिंग भी अच्छी है। यार बोलने को बोला था, आगे पीछे क्या स्पेलिंग है? और नवीन, द नेक्स्ट वन इज फॉर यू। गुंडे नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स में बीप। आप सारे बीप वाली लाइन ही बोल रहे हो, आपको बहुत पसंद है। अब मैं क्या करूं, ये लिस्ट ही ऐसी है मेरे पास। तो जीतू दी ना वेरी पॉपुलर लाइन यार। वेरी पॉपुलर लाइन एंड आई वाज जीतू एंड हाई जीतू जी का पूछिए, कुछ गैरी का पूछिए तो थोड़ा अगेन मुश्किल भी हो, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, क्या बात है? But I have a story about this dialogue. Can I please quickly? Vipul, can I tell them that story? The TVF live one story. हाँ। Dialogue की जो है। Yes, go for it. Okay. So हम लोग ना TVF live करते थे. Basically, Vipul used to host these TVF live things which travel with. ठीक है, अलग हमारे पिताजी हमें हर जगह पे लेके जाते थे। मुझे इमरेसली और से ज्यादा फायदा पिक्चर से हुआ था लाइव शो में। करेक्ट, क्योंकि पिक्चर्स वाज मोस्ट पॉपुलर इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड नॉट स्कूल्स, कॉलेजेस। तो हम लोग अभी ना हमारा एक सेट फॉर्मेट होता था कि ये जो लाइन है ना, गुंडे नहीं है एंटरप्रेन्योर्स है बीप। ओके, तो भाई साहब, हाँ भाई साहब। तो वो हमारा ये ऐसा ऑफ स्क्रीन जीतू की लाइन होती थी, ऑफ स्क्रीन आता था। देन देयर वुड बी अ स्मोक मशीन एंड देन स्मोक के थ्रू जीतू अपीयर होता था। And you know he would say off screen, as an off stage he would say गुंडे नहीं है, and then he would enter through the smoke and say entrepreneur है भाई साहब, you know, whatever. Now what happened was ये smoke वाला उसको पता नहीं था। ये हम एक कॉलेज में गए थे तो पहले तो वहां पे ना टेक्निकल इश्यूज बहुत हो रहे थे। so जीतू, अब वहां पे माइक का इशू हुआ एंड दिस लाइन की गुंडे नहीं है वो आधी आई
So we were on stage, and this is our cue also, right? We are expecting him to come on stage. So हम खड़े हैं stage पे, suddenly we hear static, day नहीं है, ठीक है, ये सुनाई दिया, and then Jeetu is entering. Smoke aa gayi suddenly. He was not expecting, so he tumbled, he banged into something, he tumbled onto stage, and he's like, and खत्म हो गया हमारा। तो हम कशन जो हम दिखाने आए थे वहाँ की सब we were all brought up, and yeah. Oh shit. मुझे नहीं पता था यार, ये बहुत फनी है। सवाल आया है सृष्टि नेगी का आपके लिए। नहीं बट जनता इतनी चिल है, कॉलेज में इतनी फैंस थी जीतू की, क्यों फिर जीतू स्टेज पे आया, मैंने बोला यार मिला नहीं हमें जो चाहिए था अपलोड, तो मैंने बोला एक बार फिर से बोल दे, उसने फिर से बोला और जनता फिर से रोर करी। रोहिणी, बट ये तो फैक्ट है कि वो पिक्चर्स के बाद ना, मतलब काम वाम तो भी इतना कुछ खास नहीं था, तो विपुल के साथ हम लोग कॉलेजेस में ट्रैवल करते थे बहुत ज्यादा, और वो मेरे ख्याल से मेरा उस साल का बेस्ट टाइम है, क्योंकि सबका यार इज द फनीएस्ट। मतलब आप हर वक्त हंसते रहते हो, आप पूरा फ्लाइट में, पूरा गाड़ी में, जितना भी ट्रैवल कर रहे हो। पैसे में बहुत कम मिलते थे, 20-25 हजार मिलते थे एक शो के, बट मजा। अरे नवीन हम कुछ करते भी नहीं थे यार। हम तो कुछ करते भी नहीं थे यार। अरे मुझे बोलता था अपनी। अरे तो बेसिकली वहां पे भी ये फायदा हो गया कि लाइव शो करना है तो मैं अकेला स्टैंड अप कॉमिक और बाकी ये लोग एक्टर्स है, तो ये Q&A टाइप्स करते थे, तो एक ही कमेडियन है, तो मेरे को काम मिल गया फिर से लाइव का भी TVF का। मैं हर जगह जाके स्पीच बोलता था, बिल्कुल हर जगह जाके मैं सेम स्पीच बोलता रहता था बार-बार। नवीन एक सवाल आया है सृष्टि नेगी का आपके लिए, कहती है कि डू यू फील, और ये मतलब हर्ट कर गया मुझे ये सवाल, तो आप हर्ट मत होना, आप आंसर कीजिएगा कि डू यू फील दैट योर ट्रू पोटेंशियल एज एन एक्टर has been utilized post pictures? मतलब इतना डीप सवाल है, मतलब pictures was where it was most utilized, actually compliment दे रही है, but what do you have to say for this? That do you think that a show like pictures, can happen again, या फिर सीजन पे सीजन ही निकालते रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मुझे लगता है कि अभी हाँ, मुझे तो उस वक्त ऐसा लगता था कि पिक्चर्स 2 अगर नहीं होगा तो क्या पता, मतलब ऐसे ही धक्के खाता रह जाऊं मैं, और मेरे साथ भी वो पहले 1.5 साल तो स्टार लाइक फील होता था, उसके बाद फिर उसका जो था इम्पैक्ट खत्म हो गया। और जैसे बीला कह रहा है, बीला का जो मतलब अभिषेक का जो पहले था कि कि अरे दोस्त बुला रहा है ऑडिशन के लिए, वो भी छोटे से पार्ट के लिए, तो वो मुझे उसके बाद फिर भी होने लग गया था। तो मैंने कहा यार ये क्या है, तो मैं तो बहुत डेस्परेटली पिक्चर्स 2 की वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था फिर से थोड़ा एलिवेट करेगा स्टैंडर्ड। अभी हम ग्लैड एस्पिरेंट्स हो गया है, तो शायद अब थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए माहौल, आई एम गेसिंग बेटर काम मिलना चाहिए, बट आई एम ग्लैड पिक्चर्स 2 भी हो रहा है। तो बट ये कहना बड़ा ऑड है कि पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेरी लक ड्रिवन फील्ड। आई थिंक जितना हुआ भी है, मैं तो उतना भी नहीं एक्चुअली स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर रहा था। तो yeah, and I think the beautiful thing about actors is that you will see them in different roles, and प्रॉब्लम होती है कि हेलो इफेक्ट होता है ना, आप एक रोल में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर यू वांट टू ब्रेक दैट योरसेल्फ because you don't want to remain in that halo effect forever. Well, Shrishti, thank you for your question, and I hope that you got your answer. And you would also know about even Soleimani. Yeah, we shot the movie in 2012, and we struggled to release the film for the longest time. The film came out in 2014 end. Yeah. So ये तो अभी है थोड़ा सा. बिल्कुल. Yeah, and looking forward to that. The next one, of course, ये एक और लाइन है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप नवीन आप ही बताएं कि उन्होंने ये लाइन कही थी, I am a zero in the team, but इनकी लग जाता हूँ तो नेट वैल्यू 10 times हो जाती है. I know. ये हमारे मंडल सर ने कही थी, जिनको मैं प्यार से मैंडी बुलाता हूँ. तो मेरे रूममेट. आप जरा ये बोल के बता दीजिए हमें ये डायलॉग प्लीज. हाँ. नहीं यार क्या भूल गया है. नहीं वो अभी 6 साल का गैप है तो वही ये कौन सा डायलॉग. Alright, we're gonna take this. Very nice. हम ऐसे come on. अबे कुछ भी बोलते हम ताली बजा देंगे. Yeah. वैसे तो I'm a zero, पर इनके पीछे लग जाता हूँ ना तो वैल्यू 10 टाइम बढ़ जाती है. ओह.
Thank you so much. I'm going to take the focus to tripling now. Manvi, are you ready? Yes. All right. तो आपके लिए जो सवाल जवाब आए हैं मेरे पास, they are quite interesting because they are not supposed to be question answers as much as they are. You have to tell opinion us. Pieces. Opinion pieces बोल सकती हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं कि these are some sort of questions of who would you rather. Okay. Oh, nice. Who would you rather go to the movies with, Baba या Chitwan? To the movies? To watch, ना? हाँ. और क्या होता है यार? यार वो वाली कॉलेज वाली उम्र गई यार. Speak for yourself, okay? Nice. देखिए ये एक्टर एक्ट्रेस में फर्क होता है. अच्छा, who would you rather go to the movies with, Baba या Chitwan? Chitwan. Who would you rather go clubbing with? Baba. Really? मुझे लगा Chitwan. Yeah, because Chitwan will be too self-involved. Like वो अपना DJ करने लग जाएगा and all. मतलब I would want like a partner to dance with and go nuts with. And then with Baba, I'll be the more like party one. With Chitwan, I'll have to sambhalo him. You know, like that's one. Nice. Who would you rather go shopping with, Baba ya Chitwan? Baba. Who's going to pay for the shopping? He'll pay for the shopping. Fantastic. Who would you rather go for a chai break with? Both of them. Both of them. Fantastic. And last वाला सवाल, which is very fun. किनके साथ double date पर जाएंगे? Double. अच्छा, oh, sorry, I was like दोनों होंगे तो double date तो हो ही जाएगी. Then I realized no, that's not what double date is. आप एक डेट पर हैं और भी दूसरे डेट पर हैं यार. Yeah, I think Chitwan. All right, Chitwan wins this round. So for all the fans who ever wanted to, हाँ बोलिए बिल्कुल. But रोहिणी, आपको पता नहीं इनके शो में पति भी है प्रणव, उनके साथ भी कुछ करवा दो. वो ऑप्शन ही नहीं है. डबल डेट मार रही है, पति भी गायब है. बेचारा प्रणव, first of all, one of the sweetest actors to play that. Yeah. रोहिणी ZEE5 ऐप पे शो पड़ा है ट्रिपलिंग करके, वो आप भी देख लेना. और विपुल, we're bringing this to you. All the best. 15 सेकंड का टाइम देती हूँ आपको और आपको ये चीजें करने, क्योंकि आप स्टैंड अप कॉमेडियन है तो ऐसे वाले गेम डिजाइन किए गए हैं आपके लिए. 5 डिशेस का नाम लो जो ए से शुरू होते हैं. टाइम स्टार्ट्स नाउ. खाने के डिशेस ना, अरबी की सब्जी, आम मतलब आमरस, अनार, अजवाइन. अजवाइन, ये तो इंग्रेडिएंट्स के नाम. अजवाइन क्या है सब? अप्पम और पूछा ही नहीं, खाया. आलू का पराठा और आलू का पराठा. All right. अच्छा, this is not time bound, लेकिन 3 ऐसी आदतें स्टैंड अप कॉमेडियंस की जो बहुत इरिटेटिंग होती है. अब आप खुद के बारे में तो बात नहीं करेंगे, दूसरों के बारे में बताना है कि विपुल बताने वाले हैं. नहीं, वो सबका सेम होता है जो मैंने अभी भी किया होगा. एक तो अटेंशन हॉग करना, ठीक है. यहाँ पे लीस्ट बॉडी ऑफ वर्क मेरा ही है, लेकिन मैं बीच में बोलता रहता हूँ. वो हमें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार 2 मिनट हो गए, लाफ नहीं आई तो बोलना है कुछ, है ना. मैं तो नवीन के क्वेश्चन में भी बोलने वाला था कि यार उनका पता नहीं, लेकिन मेरा पोटेंशियल तो रीच नहीं हो पाया. मेरे अंदर बहुत आर्ट है, ठीक है. मेरी आर्ट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. तो अटेंशन हॉगिंग, बीच में कहीं पे भी आधी बात सुनना. मैंने आपका कोई एक कीवर्ड सुना और वहां से अपना मैं जोक घुसाने की कोशिश करूंगा, है ना. विद एक्सपीरियंस ये हो गया कि आई विल ट्राई टू मेक इट मोर फ्लूइड करने की कन्वर्सेशन से आया, बट वो दिख जाता है. हाँ, दूसरा वही यार सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी और नार्सिसिस्ट वाला तो रहता ही है. वो तो यार कैजुअली मैंने 3 मांगे तो रहता ही है. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, 3 ऐसी चीजें विपुल जो आप चाहते हैं कि लॉकडाउन के बाद भी नहीं बदली. यूट्यूब कमेंट्स, वहां तो अभी भी वही गालियां आ रही है, तो यूट्यूब कमेंट्स चेंज नहीं हुए. नहीं, जो आप चाहते हो कि ना, इट शुडंट चेंज ना, आप ये बोल रहे हो. शुडंट चेंज. अच्छा, इट शुड नॉट चेंज. हाँ, आप चाहते हो कि चेंज ना हो लॉकडाउन के बाद. लॉकडाउन में कुछ हो गया है, लेकिन आप चाहते हैं लॉकडाउन के बाद भी जिंदगी में ये चीजें ऐसी बनी रहे. जैसे फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एज अ वुमन. डैम इट, I would like to work from home. I would like to do this work from home. हाँ, और सारे इंटरव्यूज मेरे लिए ऑनलाइन ही होने चाहिए. कमाल है. हाँ,
ये तो चाहिए कि जूम शोज चलते रहने चाहिए, क्योंकि लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। हाँ, जूम शोज में चलते रहने चाहिए, क्योंकि कहीं ट्रैवल नहीं करना है, हैदराबाद नहीं जाना है, और कपड़े भी अपर हाफ में ही पहनने हैं, नीचे का दिखता भी नहीं है। तो वो जो एज एन आर्टिस्ट, तो वो बहुत मैं वैसे बहुत आलसी आदमी हूँ, तो वो तो एक बढ़िया है। बाकी क्या चेंज नहीं होना चाहिए, आई थिंक एक थोड़ी सी रिलेशनशिप्स में इक्वालिटी आई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आदमियों को भी काम करना पड़ा है, तो पेट्रियार्की को एक थोड़ा सा हिट मिला है, जो आई थिंक अच्छी बात है कि पेट्रियार्की थोड़ी डाउन हुई है। और अब ये नहीं कर सकते ना कि यार ये मैंने काम कभी किया नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में किया आपने, तो अब वो एक रिलेशनशिप में आई थिंक थोड़ी सी इक्वालिटी प्रमोट हुई है, विच जो 500 साल की पेट्रियार्की थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल से 100 साल I can't believe it took a pandemic to get rid of I can't believe it took a pandemic to tell people to not touch me. Like, you know, मैं इतने सालों से breathe on each other's faces all the time. हाँ, मतलब मैं बोले लाइन में खड़े हैं, इंसान यहाँ आके सांस ले रहा है यार, और मैं बोलती हूँ कि क्या कर रहे हैं आप, मतलब सीरियसली गाने चल रहे हैं आशिकी के इनके मन में, like what is going on buddy? But yes, but social distancing I love. और एक और चीज बिल्कुल आप बोल रहे थे। हाँ, तो पेट्रियार्की वाला ये हो गया, ये रिलेशनशिप में थोड़ी इक्वालिटी अच्छी आई है। दूसरा क्या था, पहला एक और बोल दिया, और तीसरा वो काम यहाँ पे हो जाए तो बढ़िया है। और तीसरा मतलब ये है कि अभी आप यू हैव फिगर्ड आउट के कौन मेरी लाइफ में, क्योंकि आई थिंक एक साल में सबने फिगर आउट कर दिया कि कौन मेरे असली लोग हैं और कौन फिलर आइटम्स थे। तो वो शुरू के 2 महीने सबसे बात हुई, फिर आपको समझ में आ गया कि यार ये अच्छे दोस्त है, इनसे मिलना है, ये मेरा ग्रुप है, ये वो है। तो वो जो पेरीफेरी पे जो वो सर्कमफ्रेंस पे जो पूरा रेसिड्यू था, वो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि आई थिंक एवरीबॉडी हैज फिगर्ड आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, स्पेशली फैमिली, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आप बकचोदी करते थे। और मुझे ये रियलाइज हुआ है कि बॉम्बे में घर बहुत छोटे होते हैं, पहले सिर्फ सोने जाते थे घर में, लेकिन अभी रहना पड़ा तो लगा यार ये तो जेल ही है भाई, गाँव भागो। हाँ भाई, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितने स्क्वायर फुट के घर में रह रही हूँ, मुझे अब पता चला है कितने मैं पैसे दे रही थी किसके लिए। तो आई हैड टाइम टू मापो माय हाउस, तो ये मैंने किया है, तो मुझे ये एहसास हुआ है। और बॉम्बे में तो मेरे को ये डर लगता था कि मुझे कोरोना हो गया तो होम क्वारंटाइन की जगह नहीं है यार। 4 लोग रह रहे हैं यार 2 BHK में, कहाँ जाएंगे फिर। मैं तो सोच रहा था दीवारों पे, हॉल ड्राइंग रूम की दीवारों पे ऐसे बर्थ लगाए जाए, अपर बर्थ लोअर बर्थ के ऐसे सुनना पड़ेगा। Alright, we're going to take this to fan Q&As. नवीन, आपसे फैंस जानना चाहते हैं, who was the funniest co-star on the set of pictures असली लाइफ में? Funniest co-star, I would say, I think Manvi is very funny. I think Manvi and Arunab Kumar. I think they are the funniest. I think, हाँ, I think अभय भी बहुत seriously काम कर रहा होता है, और I think जीतू भी बहुत seriously काम कर रहा होता है. I think Arunab मस्ती करते रहते हैं थोड़ी, और गागरू के साथ तो थोड़ी Fantastic. दूसरा सवाल है आपके लिए नवीन के, and I love this, कि ये फैंस हमेशा अपने स्टार्स के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। 3 चीजें you'd like to carry with yourself अगर आप किसी आइलैंड पर, secluded आइलैंड पर स्टक हो जाते हो। मैं फोन, मेरा रुमाल, और रुमाल क्यों, पहले मैं ये पूछना चाहूंगा। रुमाल, come back to रुमाल, third बोल। मेरी नाक खराब रहती है हमेशा, तो you'll always find रुमाल in my। अरे तो कोकोनट लीफ ले जाना यार, रुमाल क्या वेस्ट कर रहे हो इतनी बड़ी। अरे वो तो वही मिल जाएगा ना, वो लेके क्या जाऊंगा, बहुत अनकंफर्टेबल होगा यार, उससे और चीजें शुरू हो जाएंगी। आप अकेले हो आइलैंड पे, आपको ये पता है ना। हाँ बट अरे मैं डिसाइड करूंगा ना। अच्छा सॉरी सर। हाँ तीसरी चीज रुमाल, फोन, और हाँ आई थिंक पानी की बोतल, आई गेस। अरे किसी को साथ ले जाना, किसी इंसान को ले जाना। हाँ, और क्या बात। She is asking for 3 things. Things. अच्छा, oh things. Sorry. So I would take, अब तो मैं Z5 का सब्सक्रिप्शन ले जाती प्लस। Alright, I'm gonna take this to, alright, let's take this to अभय। अभय, अगर एक्टर नहीं होते, ये जानना चाहते हैं लोग आपसे, तो क्या होते and why? जब नहीं होता तो सीए भी होता यार, मैं क्योंकि मैं स्टडीज में काफी अच्छा था कॉलेज में, वही होता, एक्टर नहीं होता तो सीए होते। ऑलराइट, अच्छा ये बहुत ही स्वीट सा सवाल है, मंडल की तरह आप कितने हैं रियल लाइफ में?
बिल्कुल नहीं हो यार। बिल्कुल नहीं हो। लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा हो चुका है मेरा। अरे ये ब्रिलियंस ऑफ इनकी एक्टिंग है। मैं जब फर्स्ट टाइम मिला था इनसे, मेरे को लगा ये मंडल वाले चुमू होंगे रियल लाइफ में भी, ये इरिटेट करेगा मुझे। लेकिन मैं गया, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही अलग पर्सन है। तो बिल्कुल लगा यार ये, हम कॉमेडियंस तो एक ही चीज करते रहते हैं बार बार, है ना। तो मुझे तब रियलाइज हुआ यार कि कितना डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है इनके, पोलर ऑपोजिट। नहीं हाँ, हमें बिल्कुल भी मंडल जैसा नहीं है, काफी बहुत different सीरियस एक्टर है। और इनफैक्ट हम सबको वर्कशॉपिंग भी ली थी ड्यूरिंग द लाइक रिहर्सल्स। काफी 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 डिफरेंट है। मतलब कभी ऐसे 2-3 बार हुआ है कि लोगों को मंडल कैरेक्टर का नाम नहीं याद आया, तो ऐसे बोले मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मतलब मैं तेरे को गुस्सा हूँ कि नहीं हूँ। तो बहुत ही ऐसे नहीं हूँ, मतलब नहीं हूँ, वैसे तो नहीं हूँ। Very cute. All right, we move on to Abhishek. Abhishek, आपके लिए सवाल है, this is a fan question. Do you prefer serious roles या comedy roles? I prefer serious roles यार। मतलब मुझे लगता है कॉमेडी बहुत ज्यादा मेहनत वाला चीज होता है, और वो जैसा ये विपुल जैसे तो हमारे पास गॉड गिफ्टेड टाइमिंग है नहीं, तो हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डायलॉग्स रटने पड़ते हैं, फिर वहां पे स्पॉन्टेनिटी निकालनी पड़ती है। सीरियस में क्या, the game is very simple, you have to follow the director's process and वो characterization थोड़ा कर लो और कर लो। हंसाना मुझे हमेशा ज्यादा मुश्किल लगता है, it's more tough than pulling off the serious parts. Fantastic. Also movies या web series, अगर आपको सिर्फ एक चूज करना होता, so what would you choose? सिर्फ एक चूज करना होता, मतलब अगर, मतलब ओ यार, अरे मतलब अभी के मतलब बदलते हुए जमाने को देखते हुए मैं कहूँगा वेब सीरीज। लेकिन अभी आप वरुण धवन के साथ शूट करके आए हो, बढ़िया। क्या बोल रहे हो, मूवीज तो बड़ी है यार क्या। अरे मतलब तू समझना यार, अभी समझना यार। अच्छा नहीं, अरे आपने पहले बोला ZEE5 राधे मूवी रिलीज की है, तो यार आपकी तो करेंगे। तू मतलब समझना यार। नहीं मैं नहीं, बट द थिंग इज कि जब एक्टर बने थे, जब सोचा था, तो हमने फिल्मों के बारे में ही सोचा था। सेलुलॉइड, दैट इज हाउ यू सी इट कि यार हमें फिल्म करना है। हम बचपन से बड़े हुए और बड़े होके एक्टर बने, और दिन ही होता है कि हाँ पिक्चर रिलीज होगी हॉल में, लोग टिकट लेके देखने जाएंगे। पर राइट नाउ द थिंग इज दैट द कंटेंट जो वेब में बन रहा है वो जेन्युइनली ज्यादा एक्साइटिंग। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मतलब हाँ, फिल्मों की स्क्रिप्ट भी पढ़ता हूँ, वेब के स्क्रिप्ट भी पढ़ता हूँ, तो वेब में जो आइडियाज हैं, जो लोग मेकर्स बना रहे हैं, वो जेन्युइनली कुछ अलग थॉट के साथ भी है। तो मतलब दैट्स व्हाई इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस एट दिस पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी। थैंक यू एंड थैंक यू विपुल फॉर योर एक्सट्रीम ऑनेस्टी। क्या बोलूं? नो फिल्टर ऑनेस्टी। नहीं, वेब सीरीज का ये फायदा है कि अभी इतने सारे OTTs आ गए ना, तो एज ए आर्टिस्ट आपका काम मिल गया है। तो मैं बोलता हूँ इतने OTTs आने से आर्टिस्टों का IPL चालू हो गया, अब सबके पास काम है। अरे है ना। पहले 11 प्लेयर खेलते थे, अब 111 प्लेयर खेल रहे हैं, तो वो तो अच्छा वही है। और एम्प्लॉयमेंट भी है ना कि आपका सीजन 2 सीजन 3 भी होना है, तो आपको पता है कि चलो मैं 2-3 साल तक कुछ तो पैसा ये बहुत सही बात है यार। मेरा आई एम स्टिल येट टू लाइक डू दोस शोज। HYP पता नहीं 2 साल हो गए यार करे। मेरा तो पहले सीजन 2 की अरे है ना, पिक्चर्स है, HY है। वही तो अभी खुशी हो रही है, अभी फील महसूस हो रहा है कि हाँ मेरे पास भी सीजन्स है। आपका रिटायरमेंट सेट है पूरा भाई, हो गया आपका। थैंक यू। अब आप वापस साउथ इंडिया के विलेज में जाके रिटायर हो जाओ, आपका खूब काम है। हाँ, अभी तो नया डायलॉग आ गया दीवार का, तेरे पास क्या है, मेरे पास सीजन 2 है। क्या बात है। और मानवी, दिस इज फॉर यू। अगर आपको रोड ट्रिप पर जाना होता, नवीन को ले जाती या विपुल को? दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, राइट हियर राइट नाउ। किसी को बुरा फील कराना है? बैनर्जी, अभिषेक को। Exactly. अभिषेक का नाम है इन दोनों को। Thank you. Alright, this is your next question. मानवी चंचल से कितनी अलग है? यार I think थोड़ी सी तो अलग हूँ, in the sense that like I feel चंचल is the voice of reason, जैसे अपनी फैमिली में मतलब बाकी सारे थोड़े quirky हैं, चंचल शायद एक नॉर्मल, शी इज द ओनली नॉर्मल कैरेक्टर, और वो मैं नहीं हूँ रियल। आई एम द quirky character in my family in real life.
Actually, I feel I'm a lot like Chitwan, apni family mein. Like in terms of, my positioning in my family. मेरी चितवन वाली है कि people don't expect me to say smart things. Like they never give any attention to me in that respect. And then the smartest things come out from my mouth, and then they're like, whoa, So that's. Wow. I mean, I'll tell you a quick story about I know Manvi. Manvi को मैं Twitter की वजह से जानती हूँ. इससे पहले के Manvi Gagru was a star, guys. She would participate in lots of contests. बड़ी enthu कटलेट है Manvi. और मैं बॉम्बिल क्या था? बॉम्बिल चलाती थी Twitter पे और हमारी सबसे हमेशा की विनर मतलब एक होता है ना वो बंदा हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता और जीत. I love quizzes. She was that person and I was like, obviously नाम इतना इंटरेस्टिंग है मानवी गागरू, you won't forget it. फिर जाके पता चला कि दीदी तो स्टार है भाई. कट्टू 4 साल बाद सारे नहीं, एक सेकंड, उससे पहले only we met somewhere at some काला घोड़ा event or something, and वहाँ पे like I found out that you were running that Bombil Fry thing, and I was like, oh my god, and then like by then I think you shut it down, and you were like, and then we became friends, and then of course. I mean, it's amazing. I feel very invested. I mean, of course, there are some of you जिनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ. A few of you I've met along the way. But the one thing that I must say is that the reason why we're all here today is the fact that you guys have become household names because of TVF and your journey. So before we close this, I know किसी के यहाँ पे राज में चढ़े हुए हैं तो किसी को जाना है, किसी को खाना वाना खाना है. तो उससे पहले let me take this around the room, starting with Naveen. Naveen, this association of taking your TVF gold and associating with ZEE5, क्या लगता है कि इसकी वजह से क्या होने वाला है? Do you think of this as a step up, a level up? Let's start with you and take it around the room. बताइए. I feel the same here. I think it's a step up, and it's good to be part of a show जहाँ पे आपको add नहीं करनी पड़ रही है. वरना कई बार मुझे ऐसा लगता है कि when you're also trying to sell things while telling a story, वो कई बार audience के लिए इतना अच्छा experience नहीं होता है. So I'm guessing if I'm working with ZEE5, there won't be any product. I won't be selling any product while telling my story. So I'm excited about it. और मुझे लगता है कि शायद scale wise और reach का तो I can't say. I think TVF का YouTube का भी बहुत reach है. But मुझे ऐसा लगता है कि वो branding also definitely helps. So that will also come with it. So I'm glad Pictures 2 is coming on ZEE5. Fantastic. Thank you. अभिषेक, आपसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, क्या कहेंगे फैंस से? No, and I think जैसे आपने पहले ही कहा था कि मैं जी परिवार का ऑलरेडी पार्ट रह चुका हूँ और जहाँ से शुरू किया था करता मेरे जन्मदाता वाला जो परिवार है वो मिलने वाला है मेरे कर्म परिवार से. सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि दोनों चैनल्स का आई थिंक पार्ट रहा हूँ एंड नाउ टू रीच मोर ऑडियंस. एक टीवीएफ के ऑडियंस है, एक ZEE5 के ऑडियंस है, तो आई थिंक रीच भी ज्यादा होगी और ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है जो आई थिंक हम लोगों को पता चला कि HY3 भी बन रहा है और Pictures 3 भी बन रहा है और 2 बन रहा है, ट्रिपलिंग का नए सीजन बन रहा है. आई थिंक हम लोग ऑडियंस से ज्यादा इस वक्त हम एक्साइटेड हैं. अब भाई क्या कहेंगे अपने फैंस? It's the same thing. मतलब जो actually one of the first biggest Marathi web show of which ZEE5 had produced, I had acted in that. Yeah. Film had premiered on ZEE5, Marathi film. तो ZEE5 के साथ तो वो काफी association रहा है. और after this thing about Friends reunion जो ZEE5 पे आया है, उसके वजह से things have changed completely, I think so. So I'm very excited कि बहुत नया content and finally Pictures 2, Yours, 2, Tripling 3 and other shows are happening. So I think it's going to be a crazy collaboration for sure. Thank you so much. Vipul? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरा एक्टिंग करियर वेंटिलेटर पे ही है अभी तो मैं तो इसलिए एक्साइटेड हूँ. इसके पहले मेरा जी से एसोसिएशन यही था एज अ व्यूअर ऑन ZTV. ठीक है, तो मेरे लिए तो अच्छा है कि ZEE5 इतना बड़ा है, TVF इतना बड़ा है, इन सबका फैन बेस मुझे मिलेगा. और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि रसिका और अभिषेक बनर्जी इतने बड़े आर्टिस्ट बन गए कि इनके थ्रू लोग मुझे डिस्कवर करेंगे, तो मेरे लिए तो फायदा ही फायदा है. मैं तो ये तक तैयार हूँ कि ह्यूमरस 3 के पोस्टर पे मेरा फोटो ही नहीं हो, सिर्फ अभिषेक बनर्जी और रसिका का ही हो.
मेरे को फोटो भी नहीं चाहिए कि आप इनको देखना हो आपके बड़े लोग क्या कर रहे हैं, और फिर आने के बाद तो पता है लीड तो मैं ही हूँ. Guys, let me remind you once again, Pictures season 2, Tripling season 3, Humorously Yours season 3, Engineering Girls season 2, and Aam Aadmi Family season 4 coming on ZEE5. Before we go, of course, let me take this to Manvi. Manvi, say some nice words about this fabulous association. Again, when ZEE5 launched, there was they launched with a bunch of short films that I was a part of. Like there was this film called Tamashri I had done. Yeah. And I remember the launch that happened in Juhu and everything, and it was huge and all. So now I think and of course the Friends reunion. I mean, come on. I had called. So I'm a huge Friends fan. And I had told when the reunion was happening, I had reached out to the marketing team of ZEE5 saying, guys, kuch karte hain. Like, I will devise quizzes. I will devise trivia quizzes on Friends. I will only participate. I will get my friends to participate, like just whatever. But ये तो आप मोनिका वाला, ये बिल्कुल मोनिका ट्रेट है फ्रेंड्स का. Yeah, like I just wanted to do some. I felt like I owed something to Friends, and I felt like I had to give it back, but it didn't work out because I was the only one who felt like that. Nobody around me. But yeah, now that they're coming up with this TVF collaboration, I think it's cool. I think it's it's a revamping of the content image of both the parties, and I think eventually we'll find something really cool coming out of it. This is truly, वो कहते हैं ना कि Avengers Assemble. ये तो मेरा Avengers Assemble. सब आकर इस, it's like two fabulous content, universes coming together, and especially one that is so loved, which is TVF. So I look forward to watching you all. आपके नए घर में हम आपसे मिलने आएंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे आज बातें करने के लिए. And I do hope and I wish that each of you have a great run with your seasons respectively. Thank you so much, guys. मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you, guys. Bye. Bye. See you. Bye.